Hey everyone, hope you all are doing great. In this video series, important topics that you can't miss, we are discussing over the last 5 previous year GATE questions, and we are analyzing like different topics and what are all the important topics that you need to study, like that are very important for your GATE preparation. And in this video, we are going to discuss on B1.1, that is History and Contemporary Architecture. I hope these videos are helping you in preparing your own strategy. If you want to know more about the preparation strategy, about how to prepare for GATE 2024 in the last 90 to 100 days that are left, so just for that, we are conducting a webinar on 15th October 2023. Link to register for this webinar is given in the description below. So before starting the video, let me introduce myself. I am Parul Sharma. I am an architect and I did my master's from IIT Kharagpur in Infrastructure Design and Management. I secured All India Rank 28 in GATE 2019 and I am also the founder of AIRI Academy. So AIRI Academy is a place for all those who wants to learn and upskill in the field of architecture and planning. And the first course that we are live with is for GATE 2024, Architecture and Planning. If you want to join the course, if you want to join us, you can join us using the links given in the description below. So with this, let's start the video. So as I said, our topic for today is section B1.1, History and Contemporary Architecture. Okay. Now, history कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लगती है, कुछ लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बट मेन एम क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और क्वेश्चंस राइट होने चाहिए, राइट? सो इफ वी सी like in history they have given like this vast syllabus, they have given like whole history. Okay, this whole is vast syllabus, right? ये नाम इतने इतने से और इसमें याद भी हमको बहुत करना है. But history is interesting. If you study it in interesting way, it's very interesting. अगर इसको थ्योरी की तरह लोड लेके पढ़ोगे तो वो लोड ही लगेगा, बट इफ़ यू विल स्टडी इट इन वेरी इंटरेस्टिंग वे, और अगर इसको स्टोरी की तरह अगर इसको देखते चलोगे कि भाई क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, देन हाउ दैट प्रोसेस, और सारा जो है एक टाइमलाइन के साथ साथ में कैसे इवॉल्व होके हाउ वी रीच्ड ऑन टू दिस मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर, यहाँ तक का हमारा जो जर्नी रहा है वो कैसे रहा है, क्या चीज़ें हैं, उसको अगर इस पूरे इसको स्टोरी की तरह इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल. Now, if we see the breakup of like last 5 year के अंदर किस तरीके के questions आ रहे हैं and what all you need to study in history. So, in 2023 vernacular architecture पे, Indian vernacular architecture पे question आया था, right? Art Nouveau पे question था. Then we have building architectural feature, architects and their work. Then in 2022 Greek, Egyptian, so 7 questions were asked from history. 7 questions means a lot. Then your vernacular building element, arches, temple, architects and their work, right? Then again architects and their work, building and plan. Building and plan का मतलब क्या हुआ कि they have given you some building and they have asked the type, what type of plan that particular building has. Like you can consider it into form and structure also. In that video in where I have discussed on section 2, so in that video also we have discussed कि architects and their work के साथ में when you are covering architects and their work, also know little bit about the buildings that you are covering, कि उनका plan कैसा है, वो structure कैसा है, right? और building style कैसी है, whether it's a dome structure or any other structure, right? So उसको जो है उसके साथ में now here architects and their work is here, और यहाँ पे जो भी बिल्डिंग कवर कर रहे हो उसके साथ में उस बिल्डिंग्स की स्टाइल और उसके प्लान और जो बेसिक जो फेमस बिल्डिंग होती है उन्हीं के बारे में पूछा जाता है. नहीं समझ आ रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको वहां से कवर किया करो. कुछ भी नहीं समझ आ रहा उसका रेफरेंस लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. देन टेम्पल एलिमेंट्स और बिल्डिंग एंड स्टाइल, अगेन बिल्डिंग एंड स्टाइल कि तुम्हारी बिल्डिंग कैसी है, उसका स्टाइल कैसा है. देन योर 2020 यहाँ पे टेम्पल पे 3 क्वेश्चन आए थे हिंदू आर्किटेक्चर से. देन स्टाइल, सम स्टाइल ऑफ बिल्डिंग और इस तरीके का क्वेश्चन. देन योर आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क. इजिप्शियन पे क्वेश्चन, बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क, आर्चेस, आर्च एंड देयर वर्क, ठीक है. सो मेजरली अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो है दे आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस, और उसमें से भी क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं. इफ यू हैव गॉन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो यू माइट हैव ऑब्जर्व वट काइंड ऑफ क्वेश्चन. और ऐसे नहीं है कि भाई पूरा ही पूछेंगे कि कौन रूल करता था उस टाइम पे. नो, दे वोंट आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. दे विल आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू योर आर्किटेक्चर, रिलेटेड टू द बिल्डिंग फीचर, आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ दैट एरा, राइट? सो हाउ टू कवर हिस्ट्री.
देर आर टू फेमस राइटर्स. अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सो देर आर टू फेमस बुक्स और राइटर्स दैट यू कैन कंसीडर. फर्स्ट वन इज सर बैनिस्टर फ्लेचर. Okay, his books are very famous, and the way he has, Sir Bannister Fletcher, and the way he has articulated like all the material or jo sara history he has written is very beautifully written, and that book is like amazing. If you want to study history, you can go through that book. That is amazing. Then one more name that comes for this history is your Percy Brown. So these two are very famous writers in field of history. Okay, so Sir Bannister Fletcher, PDF of Sir Bannister Fletcher you can find it our free material on the app पे free material section के अंदर you can find it, Airy Academy. Okay, if you are unable to find the PDF, so you can find it there, it's there. Okay, then अब पढ़ना क्या है, हमको पता तो चल गया भाई सर बैनिस्टर फ्लेचर से पढ़ना है, पर्सी ब्राउन से पढ़ना है. पढ़ना क्या है? फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क. आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क. लास्ट 10 ईयर्स के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, उसके अंदर हर में 1 or 2 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड either related to architect and their work, either related to the building or their style of that building. So such kind of question, 1 or 2 or even 2 or 3, ठीक है, such this much amount of question they have asked you in like last 10 years. Go through all those questions. Last 10 years के question, just go through that, and in those questions what you need to see, all the architects that are there, ठीक है, cover at least 50 architects and their work. इतने तो याद करो ही. एक दिन में 5 याद करोगे, 10 दिन में हो जाएंगे, फिर उसको रिवाइज करते रहो. बट those 50 that are like keep on repeating. जो गेट भी बार बार पूछ रहे हैं, इफ एनी न्यू आर्किटेक्ट दे आर आस्किंग, सो उसको वो मैच करते हैं, किसी ना किसी पुराने आर्किटेक्ट को रखते ही हैं. ऐसा नहीं कि भाई सारे, बहुत रेयर क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर सारे नए के नए ही पूछ लेंगे, राइट. सो at least 50, make a list of 50 architects and their work, what is his style, which awards he has won. So make this complete list of architects and their work, right, and then keep on revising that, क्योंकि जनवरी तक ये फिर याद नहीं रहेगा तुमको कि कौन आर्किटेक्ट था, उसकी क्या बिल्डिंग थी. इसको रिवाइज करते रहो, ठीक है. एंड वी ऑल्सो हैव अपलोडेड one test on architects and their work under free test. So if you want to check your knowledge, so you can just go there and you can give that test. Okay, so that is free for everyone. You can just visit the app and it's under free material. So first architect and their work that you need to cover, like for sure. अगर तुमको हिस्ट्री नहीं भी समझ आ रही ना कि यार हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी जाएगी, इतनी सारा सिलेबस है हिस्ट्री का, so just cover architects and their work. And those students who want to cover it and those who are like कि नहीं मुझे बड़ा इंटरेस्ट है हिस्ट्री के अंदर, so what you need to do, first thing na, you need to know the chronology. Gate has asked one question on chronology also, so you need to know the chronology. कौन सा civilization पहले आया, कौन सा civilization बाद में आया. So chronology first thing that you need to know. अब फिर chronology के साथ में building feature और architectural feature, ठीक है, architectural feature. This you need to cover from each civilization. For example, if you are covering Mesopotamian civilization, अगर तुम उसको सर बैनिस्टर फ्लेचर की बुक से कवर करते हो, so he has very well divided the subject into like what is the geographical condition of that area, how's the climate of that area, what was the social status of that area, and what was it at that time. So he has written like everything on, and he has divided it. फिर उसके बाद में he has also discussed on the main building and the architectural features of the buildings, ठीक है. तो अब जैसे मेसोपोटामियन की बात करते हैं, तो वहाँ पे सुमेरियन थे, वहाँ पे जिगुरेट्स थे. सो जिगुरेट्स वर द प्रोमिनेंट फीचर, ठीक है, मेसोपोटामियन के टाइम पे. विच सिटीज वर फेमस, ठीक है. सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस you need to know. इजिप्शियन सिविलाइजेशन हुई, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर क्या क्या फेमस था, व्हाट काइंड ऑफ टेम्पल्स वर फेमस, राइट. पिरामिड्स वर फेमस इन इजिप्शियन. तो अब पिरामिड के अंदर क्या करना है, पिरामिड के अंदर यू नीड टू नो कि भाई पिरामिड बना हुआ है, सो पिरामिड का नॉमेनक्लेचर, एनाटॉमी ऑफ दिस पिरामिड, ग्रैंड गैलरी पे क्वेश्चन आता है,
right? So you need to know the section of this pyramid, एंड पिरामिड के साथ में उसका सेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए. बहुत ईजी है, सीधा अगर गूगल पे सीधा डालोगे भी ना अबाउट दिस पिरामिड, आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ पिरामिड, इट विल गिव यू लाइक कंप्लीट. सिर्फ इमेजेस भी सर्च करोगे तो वहां से भी ये चीज कवर हो जाएगी. बट हाउ टू नो कि कौन से एलिमेंट्स और कौन कौन से बिल्डिंग्स को कवर करना है, उसके लिए यू कैन रेफर टू सर बैनिस्टर फ्लेचर, right? That is one amazing book. In our classes also we refer Sir Bannister Fletcher only. everyone अगर कोई भी आर्किटेक्चर के अंदर आपको आर्किटेक्चरल फीचर्स अगर पढ़ा रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं या तो आपको सर बैनिस्टर फ्लेचर से दे विल कवर और दे विल टेक रेफरेंस फ्रॉम पर्सी ब्राउन, बिकॉज दीज टू आर लाइक अमेजिंग बुक्स ऑफ आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर. दिस इज वन थिंग, ठीक है. अब यहाँ से यू नीड टू कवर क्रोनोलॉजी एंड यू नीड टू कवर बिल्डिंग फीचर एंड आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ ईच एंड एवरी सिविलाइजेशन. हिंदू आर्किटेक्चर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस्लामिक आर्किटेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और अगर इससे ज्यादा और क्या इंपॉर्टेंट है, अनदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज अगर करंटली कोई ऐसा टॉपिक है जो कि करंटली हॉट टॉपिक रहा है, या एनी प्लेस दैट इज वेरी इन न्यूज, और इस तरीके की अगर कोई भी है तो वहां से रिलेटेड अगर कोई वहां पे कोई फेमस या कुछ भी चीज है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखो कि करंटली अभी कौन सा टॉपिक जो है वो एकदम हॉट टॉपिक चल रहा है और जो हिस्ट्री से रिलेटेड भी, एंड दैट्स नॉट मच टू कवर. अगर इसको पॉइंट वाइज करोगे सो इट्स वेरी इजी. आई विल ऑल्सो टेल यू लाइक हाउ टू कवर हिस्ट्री. मतलब हिस्ट्री को ना क्या है, बस कुछ नहीं, एक एक लूज पेपर ले लो और उसके ऊपर यहाँ पे जैसे अगर इजिप्शियन का बना रहे हो तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड एवरीथिंग, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो अपने साथ में. शॉर्ट नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स तुम्हारे इतने काम आएंगे. शॉर्ट नोट्स में ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर देयर. उसका अगर इफ यू आर कवरिंग लाइक क्लाइमेट, व्हाट इज द क्लाइमेट, व्हाट आर द बिल्डिंग मटेरियल दैट वर यूज्ड ड्यूरिंग दैट एरा, ठीक है, उसको कवर करो. फिर उसके साथ में आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या है, मेन बिल्डिंग्स कौन सी हैं, एवरीथिंग यू जस्ट राइट इट ऑन वन पेपर एंड दोज विल बी योर नोट्स. और उस नोट्स को वो नोट्स मतलब तुमको ना एंड उसको रिवाइज करते रहो, उन नोट्स को रिवाइज करते रहो. रिविजन इज द की, सबसे इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना. सो हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे तो हिस्ट्री में बहुत मजा आता है. सो या दिस वॉज ऑल अबाउट योर हिस्ट्री. हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रीक पढ़ लो या इजिप्शियन पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है. ऑल आर इम्पॉर्टेंट. कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है. लाइक दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन आर्चेस, ठीक है, तो आर्चेस आपको पता होनी चाहिए. आर्चेस पे तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. कितने टाइप के आर्चेस हैं, कौन सी आर्च कैसी होती है, उनकी क्या क्या, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसा है. सो आर्चेस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. आर्चेस के अलावा हर सिविलाइजेशन का देख लो ना, बिल्डिंग फीचर्स देख लो, उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल देख लो, और इट वोंट टेक मच टाइम. मतलब बस याद रखने में थोड़ा सा लगेगा कि इतना याद कैसे, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो. एंड आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क, उसको तो छोड़ना ही नहीं है. अगर तुम हिस्ट्री बाकी अगर नहीं भी हो रही है, यू हैव दिस टाइम शॉर्टेज और समथिंग, सो कोई बात नहीं. बट आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर्क, मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग कि कुछ भी छोड़ के जाओ. हिस्ट्री इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट if you don't have time and if you want to like prioritize, if you are prioritizing topic, तो उसके अंदर architects and their work that you need to cover, at least do that, ठीक है, because 1 or 2 question you can expect from that. So yeah, this was all about history, and for the discussion on preparation strategy and everything, we are here to help you, and that's why we have kept this webinar. So I would suggest all of you to join the webinar. It will be really helpful for you all. Hi everyone, I am Parul Sharma. If you like the content that we share on our channel, please do let us know in the comment below, and also please like, share and subscribe. Thank you.